Okay. So, so here in this formula, round value gives the simply round till some digit. So, for example, here in this value, we want the rounding till three digits, right? So rounding till three digit will give the value as it is till three. And after that, if values are more than five, then it will add one to the last value. Otherwise, it will keep that value as one. So till second, it will be as it is. So here we have done the rounding till three. Yeah, yeah. Here also we convert it to rounding till three, right? So now here you can see in this you can see 7 to 8, 6 is there. So 6 is more than 5. So in the rounding, this 8 will become 9. In the same way here, this is 9. So this 2 will become 3. So here you can see 0.729, 0.673. Like, right? But truncate, in case of truncate, if we'll take till 3 digit, so it will just keep the value as it is. It will not add any value if there is a value even more than five also. So, right? And round up is the full number, next full number downside, and round up is next full number upper side, right? Then there is count and count a, right? Count value counts the all the numeric value, and count A counts all the values, no matter it is numeric or non-numeric. And there is count blank. So count blank counts all the values, all the places which are blank. So suppose missing values are there, count blank will give you what missing values are there. Then next is sum if sum sorry, sum you all know. Then sum if, sum IFS is the next value. Then count if and count IFS. So when you have to do counting based on certain condition, right? So certain condition, for example, if you want something like in this data, you can see here now you want to you want the sales based on just product one, means that you want total sales for product one, product two, product three, and product four, right? So for this, what we'll do is sum if, and here what is the range of which needs to be summed. This is the range which needs to be summed up. Then comma, criteria based on this is the criteria, and which value is to be summed up. Sum range is this. So here added, right? So if we see at this place, right? So here this is 14,754. So what is this? So if we take this value, suppose just we select product one only, right? So if product one is just, you can see here, this is 14,754. That's what is coming over here, right? And the same way, if we just drag the same for other rows as well, right? So in this way, you can find some based on one condition, right? Now, when you want to apply the multiple condition, so multiple condition in the sense, for example, you want the sum of product one if the price of product is more than 55, right? So let's suppose the 55 we say. So here if we say this is product one, and here this price is 50, 61, 60, like this 51, 52. So we want all the prices which are means that we want total for all the prices, all the total where price is more than 60, right? So price is when more than 60 will select. So this all will remove, and only this will come. So this should be this, right?
So we'll apply that condition. So suppose for this, we want all that sum where price is more than 60. We'll do this. Okay. So here some IFS, here some range. So first of all, let me clear this. This I want more than 60. Okay. And this I want more than suppose 55, and this I want all the sum more than 65, and this I want more than this is also 60. Okay. So now what we'll do is sum IFS and sum range is this, right? And then criteria range. So first criteria is this product, and criteria is this. Second criteria is second criteria is what? Second criteria is price, right? So price criteria we have selected, and then this I6, I6 we have selected, and okay, right? So now you can see the difference between total, right? So here have applied multiple condition in the sense here यहाँ पे जो प्राइस है वो सारे प्रोडक्ट वन का है, यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट वन का प्राइस है जिनका यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट वन का टोटल है जिनका प्राइस 60 से ज्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्ट टू, सारे प्रोडक्ट टू का की टोटल का यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का टोटल किया गया है जिनकी प्राइस 55 से ज्यादा है। सो इफ वी सी this is 6965, and if we see this product 2, you can see here overall value is 11,740, while if we just take it more than 55 only, right? So this, right? You can see this is 6965. Okay. So इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस में सम और सम इफ्स को लगा सकते हैं। Is it clear? Yes, sir. Isha, Sneha, Sachin, and Tanvi. Clear, sir. What about others? Sir. Yes, sir. Okay, great. In the same way, there is count if and count if भी होता है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन पे, सिंगल कंडीशन पे, मल्टीपल कंडीशन पे, ठीक है। देन फिर कल हमने पढ़ा था एवरेज एंड एवरेज इफ, तो एवरेज एंड एवरेज इफ एंड एवरेज IFS, एवरेज इफ एवरेज IFS, राइट। तो यहाँ पे एवरेज इफ और एवरेज IFS इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते। देन हमने मिन मैक्स सम लार्ज ये भी पढ़े थे। सो मिन मैक्स सम लार्ज, सॉरी सम नहीं, स्मॉल, min max small large, right? So min minimum value from total list, maximum value from total list। अब हमको सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करनी, तो हम स्मॉल एंड लार्ज को यूज करते हैं, राइट। एंड देन वी स्टडीड अबाउट if error, then is even, is odd, is number, is text, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो ये टोटल कल हमने मिला के 26, एक फॉर्मूला कोई और पढ़ा था हमने, एग्रीगेट था, एग्रीगेट सॉरी एग्रीगेट था, एक रह गया अपना। सब्स्टिट, यहाँ पे ये एग्रीगेट, हाँ ये एग्रीगेट भी पढ़ा था।
एग्रीगेट, ये एग्रीगेट का फॉर्मूला है, ये भी थोड़े दिन बाद हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो एग्रीगेट में क्या होता है कि जब भी हमें सब टोटल वगैरह फाइंड आउट करना होता है तो हम एग्रीगेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें सब टोटल फाइंड आउट करना था, तो इसमें जब हम एग्रीगेट लगाएंगे, एग्रीगेट एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे एवरेज फाइंड आउट करना है, काउंट फाइंड आउट करना है, नंबर काउंट करना है, सारे कैरेक्टर काउंट करने हैं, मैक्स फाइंड आउट करना है, मिन फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सम है। तो यहाँ पे हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 9 नंबर लेके सम फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से मीडियन फाइंड आउट करना है, या बहुत सारी परसेंटाइल है, क्वांटाइल है, क्वार्टाइल है, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम सब सब टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सब टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, इसमें why didn't we use the sum formula सिर्फ थी? यहाँ पे सम फॉर्मूला हम इसलिए नहीं यूज करें क्योंकि हमारे पास जो रेंजेस हैं वो बीच बीच में अलग अलग हो रही हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं, 56, 78, 89, then 56, 43, 34, then 66, राइट। अभी यहाँ पे हमने बीच में यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, और बीच में हमने यहाँ पे एक स्पेस देके यहाँ पे स्प्रेस किया। अभी हम यहाँ पे अगर सम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर सम यूज करेंगे तो ये वैल्यूज भी इस तरह से आ जाएंगी, लेकिन क्या होगा, ये अभी हमारे पास छोटा सिनेरियो है, राइट। छोटे सिनेरियो में ये चीजें हमें ट्रैक करने में आसानी होती है, राइट, क्योंकि हमारे पास जस्ट तीन तीन वैल्यूज हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, राइट, जहाँ पे सपोज 10,000 वैल्यूज हैं, या 10 लाख वैल्यूज हैं। 10 लाख तो खैर नहीं होगी इसमें एक्सेल में कभी, लेकिन मान लो 1 लाख वैल्यूज हैं। तो वहां पे क्या होगा कि इस तरह के बीच बीच में जाके इस तरह से सम डालना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पे बीच में ऐसे ऐसे केसेस भी सेट करने के लिए हम एग्रीगेट फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसका जो ब्रॉडर सेंस है वो ये है कि हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स की जो जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू है वो हम डायरेक्टली एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। केवल यहाँ पे पर्पस ये कैलकुलेट करना, सम को कैलकुलेट करने का पर्पस नहीं है। यहाँ पे पर्पस है कि यहाँ पे मल्टीपल स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स हैं, हमें उनको काउंट करना, हमें उनको कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसके लिए हम अगर केवल सम डाल देंगे तो हम सम पे यहाँ पे केवल रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट को यूज करते हैं तो हम एक पैरामीटर से ही हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे यहाँ पे 9, 3 और इनको हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख लो कि जो हमारी 9 वैल्यू है ये कॉमन है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया 9, और यहाँ की ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ से रेफर कर दी, राइट, और इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। कंट्रोल सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्रीगेट में हमारे पास मल्टीपल चीजें वर्क कर रही हैं, तो एग्रीगेट में मल्टीपल चीजें हैं। तो अब जैसे सपोज हमें अगर इन सबका बीच बीच में एवरेज फाइंड आउट करना है, तो हमें अब हर जगह जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 दे दिया और उनका एवरेज आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे अगर हमें इनको इनमें से हर ग्रुप वाइज मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें 4 देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे
4 दे दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हर ग्रुप में फाइंड आउट होके आ गई। इसी तरह से और कोई वैल्यू अगर आप देखना चाहते हो एग्रीगेट, और यहाँ पे सपोज हम इन सबका इसमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेकंड तो लार्जेस्ट के लिए है 14, राइट। तो हमने यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे हमने 14 दे दिया सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, यहाँ पे इतना दो ही तीन तो वैल्यू है एग्रीगेट। यहाँ पे और कोई वैल्यू हम देख लेते हैं। अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, राइट, या हमें काउंट करना है, राइट, तो हमने यहाँ पे दे दिया 3, 3 या 2 में से कुछ भी दे देंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया 2, तो कितना कितना काउंट है वो आ गया। ये सिनेरियो समझ में आ रहा है, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे हम बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन का जो टारगेट है, हम अपने डेटा को या अपनी एनालिसिस को इतना जो भी हमने डैशबोर्ड बनाया है, एनालिसिस बनाई है, या जो कुछ भी हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाए कि जस्ट एक वैल्यू चेंजेस से वो चेंजेस सारी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। सम यूज करने में बुराई नहीं है, सम भी अच्छा है, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे सम कैलकुलेट करना नहीं है। जो भी स्टैटिस्टिक्स हम चाहें वो वहां पे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाए, दैट इज द टारगेट। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। कल हम एक और चीज कैलकुलेट करे थे, मैं सोच रहा था कि इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको और डिटेल में बताऊंगा। ये आपके डेटाबेस फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें डेटाबेस फॉर्मूले में और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे डी डी मैक्स है, डी मिन है, ये तो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। डी मैक्स है, डी मिन है, फिर डी सम होता है, डी डी काउंट होता है, डी काउंट ए होता है। तो इस तरह से 7-8 फॉर्मूले होते हैं, जो जिनको हम डेटाबेस फॉर्मूला बोलते हैं, राइट। अभी हम डी मिन और डी मैक्स को ही देख लेते हैं, फिर हम थोड़ी देर में और भी बाद में हम जब काफी चीजें और कवर हो जाएंगी, फिर हम इनको भी देखेंगे कि क्या होते हैं डेटाबेस फॉर्मूले। तो डेटाबेस फॉर्मूले का बेसिकली पर्पस होता है कि हमें एक डेटाबेस में, मतलब एक पूरी टेबल में, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ये हमारे पास सारी वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू में हमें यहाँ पे ये वैल्यूज में मिनिमम या मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ से इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम 150 मिल गया, राइट। ये ठीक है, हमें मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चाहिए, राइट। हमने कंडीशन लगा दी कि यहाँ पे हमें सी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमें पूरी मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। तो वहां यहाँ पे ऐसे केसेस में फिर हम डेटाबेस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब ये डेटाबेस फॉर्मूला करता क्या है? डेटाबेस फॉर्मूले में जो सी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला डी मैक्स। अब हमारा पूरा डेटाबेस कहाँ है जहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है? वो ये है हमारा पूरा डेटाबेस, जहाँ पे हमें प्रोब का नाम भी मिलेगा और वैल्यू भी मिलेगी। तो ये है हमारा पूरा डेटाबेस, राइट। अब इसमें फील्ड क्या है, कौन सी फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है? तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? इस वैल्यू में, राइट। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। और क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया है हमारा सी, राइट। ये है हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, हम इसको डालेंगे, यहाँ पे इसने दिखा दिया सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे इसने हमें सेलेक्ट करके दिखा दी। इसी तरह से हम सी की अगर हम यहाँ पे हमें बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे बी डाल दिया, हमने यहाँ पे बी डाल दिया, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, राइट। हमें ए चाहिए, तो हम यहाँ पे ए की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से जो मिनिमम वैल्यू है, तो डी मिन में क्या करेंगे? सेम चीज, सिर्फ यहाँ पे डी मिन हो जाएगा। डेटाबेस हमारा ये है हमारा डेटाबेस,
इसमें फील्ड क्या है हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होगा कि हम निकाल रहे होंगे, अब जैसे बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, इन दोनों को हटा देते हैं। बहुत सारी हमारे पास वैल्यूज हैं, सपोज हमें एक ए का चाहिए, फिर बी का चाहिए, ठीक है, इस तरह से हमें चाहिए, राइट। तो और यहाँ पे वैल्यू इस तरह से लिख दिया, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ, सॉरी, डी मैक्स ऑफ, ये हमारा डेटाबेस है, हमें वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, और क्राइटेरिया क्या है, ये है और ये है। सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा है ये, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से नीचे ही काम करेगा, ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसी फॉर्मेट में काम करेगा, तो हमें हमें यहीं पे देना पड़ेगा। तो अगर बेसिकली मेरा बताने का पर्पस ये है कि ये वैल्यू है, और ये वैल्यू मान लो अभी हम इसको सेलेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, अगर इसको कहीं और पे लिख के सेलेक्ट कर दिया गया, तो ये जो स्पेलिंग है और ये स्पेलिंग है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, अभी हमने यहाँ पे डी मैक्स का फॉर्मूला लगाया, डी मैक्स का फॉर्मूला लगाया इस डेटाबेस में, राइट, और वेल फील्ड हमने वैल्यू कर दी, और यहाँ पे क्राइटेरिया हमने ये दे दिया, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू एरर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो ये इस वैल्यू को सर्च कर रहा है, जो कि इसको यहाँ पे नहीं मिल रही है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ई कर देंगे तो ये वैल्यू सही दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आप जिस जिस भी फील्ड को आप यहाँ पे पॉपुलेट कराना चाहते हो, उसका जो नाम है वो एज इट इज होना चाहिए, राइट। तभी वो सही पॉपुलेट करेंगी वो वैल्यू, अदरवाइज वो वैल्यू सही पॉपुलेट नहीं होंगी। इज इट क्लियर? Yes, इज इट sir. क्लियर? ओके, ग्रेट। इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया भी आप डाल सकते हो। तो मल्टीपल क्राइटेरिया में क्या है, सपोज हम यहाँ पे कॉपी कॉपी करके ले आते हैं, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट वन की टोटल, प्रोडक्ट वन की सेल फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट वन की मैक्सिमम सेल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट वन की मैक्सिमम सेल फाइंड आउट करने में क्या है, हमें यहाँ पे डी मैक्स हमने किया। इसमें सबसे पहले हमें ये हमारा पूरा डेटाबेस है, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे फील्ड कौन सी है, फील्ड है हमारी प्रोडक्ट, हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने सपोज सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, अभी यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। नहीं, हमें फील्ड फील्ड कौन सी चाहिए, फील्ड यहाँ पे टोटल वाली चाहिए हमें। तो फील्ड की जगह पे हमने डाल दिया M4, ठीक है, हमने M4 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 2560 आ गई। हमें हमें टोटल चाहिए था मैक्सिमम। यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही, 2560 आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं डाला है, तो जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं कि प्रोडक्ट वन, राइट, हमने यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट वन, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी यहाँ आ लो। अभी हमने यहाँ पे इसको डाला डी मैक्स, और
ये हमारा पूरा डेटाबेस है, हमें फील्ड चाहिए, ये टोटल, और क्राइटेरिया क्या है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। प्रोडक्ट वन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2560 है, तो यहाँ पे इसीलिए 2560 दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्रोडक्ट चेंज करते हो, यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट वन की जगह पे हम प्रोडक्ट टू डाल देते हैं, तो प्रोडक्ट टू की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यहाँ पे प्रोडक्ट टू की जगह प्रोडक्ट थ्री डाल दिया, तो प्रोडक्ट थ्री की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट फोर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी सर। ये बात समझ में आ रही है? तो हेलो, दीक्षा, तन्वी, सुहानी, सचिन। Yes. आगे सर। ये ये एक सिंगल कंडीशन पे हमने लगाया है, हमने यहाँ पे ये लगाया है सिंगल कंडीशन पे, ठीक है, कि प्रोडक्ट वन में चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डबल कंडीशन पे लेके आते हैं, ठीक है। तो टू कंडीशंस पे हम लगाते हैं, टू कंडीशंस पे मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो टू कंडीशन पे मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज ये हमारा प्रोडक्ट वन है, और प्रोडक्ट वन में हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम टोटल की वैल्यू चाहिए, जहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी सपोज 30 से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हमने दे दिया ग्रेटर देन 30, इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम अब देते हैं डी मैक्स, ये हमारा डेटाबेस है, इसमें ये हमारी फील्ड है, हमें हमें टोटल चाहिए, हमने यहाँ पे टोटल डाल दिया। और क्राइटेरिया क्या है, ये दोनों हमारे क्राइटेरिया फील्ड हैं, ठीक है, उसको हमने बंद किया, राइट। तो 2380 आ गई, 2380, राइट। तो ये चेक करते ये सही आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फोर को सेलेक्ट किया, राइट। प्रोडक्ट फोर में हमने सेल की क्वांटिटी सेलेक्ट की 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, सॉरी। तो 30 से ज्यादा की सेल क्वांटिटी में मैक्सिमम क्या है, 2380 आ रहा है, वही आ रहा था, 2380, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट कर लेते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम में फिर कंफ्यूजन हो रहा है, मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे 1320 है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम आ ही रहा था, तो दोनों वैल्यू सेम लग रही थी, इसलिए हमें इतना कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप वैल्यू वैल्यू चेंज करोगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी वैल्यू, अगर हमें प्रोडक्ट वन की चाहिए यही चीज, तो प्रोडक्ट वन में आ गई। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा के भी मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज पूरे एक्सेल में और कोई फॉर्मूला नहीं करता। जैसे सम में आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, सम इफ के साथ में सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली और कहीं भी मिनिमम या मैक्सिमम आप कंडीशन लगा के फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला, डी मिन और डी मैक्स, जिससे आप मिन और मैक्स के लिए भी कंडीशन लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? सर हम दो प्रोडक्ट्स का भी निकाल सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला। क्या कर सकते हैं? अगर दो प्रोडक्ट्स हैं हाँ, एंड उनका मैक्सिमम निकालना। दो प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम, आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सर सर लाइक प्रोडक्ट इस एग्जांपल में हमने प्रोडक्ट वन लिया है एंड बट इफ वी टेक हम्म। प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू एंड उन दोनों में कंबाइंड में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम हाँ वो सेम भी हम कर हाँ वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें और थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला जानने की भी जरूरत है।
अभी के लिए ये मतलब सिंगल कंडीशन पे आप वर्क करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी उन चीजों को हम कैसे टैकल करते हैं उसके लिए फिर सम प्रोडक्ट आता है, वहां पे हम वो कंडीशन लगाते हैं, वो फॉर्मूला आता है। ठीक है। यस। ठीक है। सो डू नॉट वरी, अभी वो सारी चीजें आएंगी, वन बाय वन सारी चीजें आएंगी। ये डी सम, सॉरी डी मिन डी मैक्स समझ में आया? अभी इसमें हम थोड़े दिन में और अभी और बाकी चीजें भी देखेंगे कि डी सम है, डी मिन है, डी मैक्स है, फिर डी एवरेज होता है, और डी काउंट होता है, डी काउंट ए होता है। तो वो सारी चीजें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें अभी आएंगी। ठीक है। तो डी फंक्शंस में और भी, जैसे डी डी मिन डी मैक्स है। ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम आएंगे, इन सारी चीजों पे आएंगे, डोंट वरी। अभी अभी के लिए ये चीज है। अब अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा हम टेक्स्ट फंक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं कि टेक्स्ट फंक्शंस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो डी इसमें टेक्स्ट फंक्शन पे हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पे अब सपोज बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम नाम दिया हुआ है, उसमें हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना है। तो सपोज यहाँ पे नाम है सचिन यादव, और फिर दूसरा नाम है दीक्षा, के आगे क्या लिखते हो? सर वालिया। दीक्षा वालिया। फिर सुहानी। मंगला। MAN। कहाँ है? मंगला। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। MANGLA। ओके। MANGLA। और फिर तन्वी। यादव। चलो कुछ भी रख लेते हैं, तब तन्वी की आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें अलग करना है, लेकिन उस दिन जैसे बताया था कि आप फ्लैश फिल से कर सकते हो, हमें फ्लैश फिल से नहीं करना है। फ्लैश फिल से तो बहुत आसान है। ठीक है। हमें फॉर्मूले से करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट करेंगे, थोड़ा लॉजिकल है। और इंटरव्यूज में जाओगे तो 90% केसेस में, जब अगर आपको वो सिस्टम टेस्ट पे देते हैं, तो ये क्वेश्चन होता ही होता है, मोस्टली 90% केसेस में। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे अलग अलग करके देखते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे यूज कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट नेम के लिए, अब फर्स्ट नेम यहाँ पे क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस यूज करेंगे। तो कुछ फंक्शंस में एक हमारा आता है लेफ्ट फंक्शन आता है, एक हमारा आता है राइट फंक्शन। तो जब हमें लेफ्ट से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने होते हैं तो हम लेफ्ट फंक्शन को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे गए, हमने लगाया लेफ्ट, राइट, एंड यहाँ पे हम ये गए इस टेक्स्ट में। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं लेफ्ट की साइड से, ये हमें यहाँ पे देना होता है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट की साइड से हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं। राइट। तो हमने यहाँ पे 6 यहाँ पे हम दे देते हैं। राइट। तो 6 कैरेक्टर दिए तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया। लेकिन अगर हम यही आगे ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे दीक्षा में इसका ए गायब हो गया। अब सुहानी में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, तो सुहानी का नाम सही आ रहा है। अभी कोई ऐसा नाम हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ओम दुबे नाम ले लेते हैं, suppose, ओम दुबे। राइट। तो यहाँ पे अब पहले 6 कैरेक्टर लेने पे क्या आ गया, ओम ड्यूबी आ गया। राइट। तो हमारा ये नाम सही नहीं आ रहा है। राइट। रीजन क्या है कि पहले उसमें कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 5 है, यहाँ पे 2 ही है। राइट। यहाँ पे अगर हम इति सिंह ले लेते हैं तो यहाँ पे इति ऐसा ही आ गया।
तो ये हमारा हर जगह पे वो कॉमनली वो चीज काम नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉमन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये जो 6 वैल्यू है, इस 6 वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा एक डायनामिक वैल्यू में। वो डायनामिक वैल्यू क्या होगी? वो डायनामिक वैल्यू होगी, यहाँ पे जब हमने सचिन फाइंड आउट किया था तो हमें कैसे पता लगा था कि हमें एन तक ही लेना है? हमें कैसे पता लगा था कि हमें एन तक ही लेना है? हमें कैसे पता लगा था कि हमें एन तक ही लेना है? सर काउंट करके। स्पेस की पोजीशन से। जहां भी हमें स्पेस दिखा उसके जस्ट एक पहले तक का हमें डेटा लेना है सब में। इज इट क्लियर? यस। यस, नो? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पेस फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे फाइंड स्पेस करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेस हमने लिया, और कहाँ पे फाइंड करना है? यहाँ पे फाइंड करना है, राइट? तो जैसे ही हम इसको डालेंगे, इसने बता दिया कि कहाँ पे कितना किस जगह पे कौन सा स्पेस है। अब अगर हम इसके जस्ट पहले तक का ही डेटा ले ले तो हमारा काम हो जाएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमने फिर से लेफ्ट का फंक्शन लगाया, और यहाँ पे ये वैल्यू कॉमा यहाँ तक ये नंबर -1, राइट? 6 थे तो 7 -1 हो गया, ठीक है। अब आप इसको अप्लाई करोगे तो सबका नाम आ गया सही? आ गया? यस, नो? सर दीक्षा का नहीं आया। समझ में नहीं आया? सर नाम कंप्लीट नहीं आया ना दीक्षा का, ए नहीं आया लास्ट लेटर। दीक्षा का नाम पूरा क्यों नहीं आया? ओ सॉरी, सर मैं A4 A4 लेना। हाँ, A4 लेना है जी। हमने यहाँ पे A3 लेना, बी क्यों लिया हुआ है? अभी आ रहा है सही? सही आ रहा है? यस सर। ओके। तो यहाँ पे हमने जो यही काम जो हमने 2 स्टेप में किया, कि पहले यहाँ पे हमने फाइंड स्पेस किया, इसके बाद उसको लेफ्ट में डाला है, वही चीज हम एक साथ कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट, और इस टेक्स्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे फाइंड किया हमने, यहीं पे फाइंड विद इन दिस टेक्स्ट एंड -1। तो ये हमें फाइनल मिल गया, ठीक है, एक ही स्टेप में। इसी तरह से हम लास्ट नेम फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट नेम फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट लगाना पड़ेगा। राइट से नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो राइट से नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कितने हैं? 5 है, राइट? तो यहाँ पे 5 हमें मिल गए। अगर हम सब में यही करते हैं तो 4 सही आ रहे हैं, जहाँ पे लास्ट कैरेक्टर 5 5 है वहां पे सही आ रहे हैं, बाकी मंगला और मिश्रा ये दोनों सही नहीं आ रहे हैं, राइट? अभी सपोज यहाँ पे इस तरह से होता, स्वाध्याय, राइट? तो आधा ही नाम आया, राइट? यहाँ पे दुबे की जगह होता चौहान। तो इस तरह से हमारे पास ये आधा ही आधा डेटा आ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में 5 है वहां तो सही आ रहा है, लेकिन जहाँ पे लास्ट में 5 से ज्यादा है वहां पे गलत आ रहा है, राइट? जहाँ पे 5 से कम होंगे तो वहां पे उसके पहले के भी करेक्टर आ जाएंगे। तो इसको हमें क्या करना होगा, तो फिर से वही चीज कि फर्स्ट नेम निकालने में हम स्पेस के पहले वाला पार्ट ले रहे थे, राइट? अब राइट नेम निकालने में लास्ट नेम निकालने में हम स्पेस के बाद वाला पार्ट ले रहे हैं, राइट? तो स्पेस कहाँ पे है ये तो हमें पता है, लेकिन स्पेस के बाद हमें कितने कैरेक्टर लेने हैं ये हमें यहाँ भी नहीं पता है। तो स्पेस के बाद हमें कितने कैरेक्टर लेने हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? स्पेस के बाद कितने कैरेक्टर लेने हैं हमें कैसे पता लगेगा?
एनीवन? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स माइनस द सम स्पेस के बाद जो होता है। कैन यू रिपीट इट? So the total number of characters in a name minus the characters like space वाले जो होते हैं। वेरी गुड सुहानी. विन ऑस्कर विद दिस. सो यहाँ पे या आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर. तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जितनी हमारी टोटल लेंथ है, यहाँ पे टोटल जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं सब, सचिन यादव में, दीक्षा वालिया में, सुहानी मंगला में, जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, अगर उसमें से हम स्पेस तक के जितने कैरेक्टर है वो हटा दे तो हमें लास्ट के जो लास्ट नेम वाले कैरेक्टर है वही बचेंगे कि नहीं बचेंगे, राइट? तो हम यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे. लेंथ ऑफ दिस, इसकी लेंथ क्या है ये हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, तो किसी में 12 है, किसी में 13 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो वो हमें फाइंड आउट हो गई. अब इससे हम क्या करते हैं, हमने हटा दिए फाइंड स्पेस वाली वैल्यू, राइट? तो हमें यहाँ पे मिल गया कि हमें कितने कैरेक्टर चाहिए, राइट? तो ये हमारी लेंथ डाउट इन दिस? मोहनी, दीक्षा, तन्वी, नो सर. सचिन. ओके, सो यही काम अब हम कंबाइन करके करते हैं. तो कंबाइन करके करने में क्या है, यहाँ पे हमने उठाया राइट, एक ही फॉर्मूले में हम कंबाइन करते हैं. तो क्या क्या कर रहे हैं हम, हमने इस टेक्स्ट में किया, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए. तो नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हमने लेंथ फाइंड आउट करी. लेंथ फाइंड आउट करी, लेंथ ऑफ दिस माइनस स्पेस की पोजीशन, पहले स्पेस की पोजीशन. आई एम सॉरी. तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने कितनी आसानी से फाइनल लास्ट नेम कैलकुलेट कर लिया. ये कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? Okay, no doubt. That's really great. I'm happy that you all are able to follow everything that I am telling. I can consider myself a very good coach, because by this you all are able to understand everything what I'm telling. So इसमें नेक्स्ट एक लेवल अप करें, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लेके आए. और do I have the permission to go next level? यस सर. ओके, अभी हमारे पास नाम है अमन कुमार व्यास, वीरेंद्र, वीर विक्रम, और सपोज अरविंद किशोर द्विवेदी. ठीक है, अब ये नाम है. अब इन नामों में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं. कर सकते हो? कर सकते हो? कौन हेल्प करेगा मेरी ये सब करने में?
Who will help me in doing this? तो फर्स्ट नेम तो आसान है, जैसे हम ऊपर निकाल रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट नेम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ये स्पेस इन दिस टेक्स्ट और यहाँ से -1 किया और हमें फर्स्ट नेम मिल गया, राइट। अब मिडिल नेम और लास्ट नेम हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो मिडिल नेम के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड का फॉर्मूला, राइट। अब मिड का फॉर्मूला क्या करता है? मिड का फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है कि किस टेक्स्ट में हमें निकालना है, कहाँ से हमें निकालना है। तो स्टार्ट नंबर मीन्स हमें अब यहाँ पे अमन में हमें के से स्टार्ट करना है, राइट। तो के हमारा किस पोजीशन पे है? अगर हम काउंट करते हैं तो के हमारा है 6th पोजीशन पे, तो हमें 6 नंबर से स्टार्ट करना है। और कुमार में यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, राइट। तो सीधा सीधा अगर हम देखते हैं फॉर्मूला, तो ये हमारा ये मिड का फॉर्मूला है, राइट। स्पेस हमें कहाँ मिल रहा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फाइंड किया, फाइंड इस टेक्स्ट में, सॉरी यहाँ पहला स्पेस, और कहाँ पे? इस टेक्स्ट के अंदर पहला स्पेस हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ये हमने फाइंड आउट किया। तो अब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं मिड ऑफ ये, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वैल्यू +1 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 5, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हमारी ये सॉल्व हो गई कि हमें हमारी जो सबकी स्टार्टिंग है वो सही आने लगी, क्योंकि हर केस में वो स्पेस के एक बाद से उठा रहा है, राइट। तो यहाँ पे के से उठा रहा है, दूसरे में वी से उठा रहा है, तीसरे में फिर से के से उठा रहा है। तो हमारी स्टार्टिंग सही हो गई। अब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं आगे ये हमें बताना है, राइट। तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ से फाइंड आउट हो रहे हैं? वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ से फाइंड आउट हो रहे हैं? वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट हो रहे हैं सेकेंड स्पेस से, राइट। सेकेंड स्पेस और फर्स्ट स्पेस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, दैट इज आवर आंसर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Please be interactive. It feels very odd when I don't get any response. सर एक बार रिपीट कर दो। Are you able to follow with me? तो अब यहाँ पे हम सेकंड स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से फाइंड फॉर्मूला लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगाया फाइंड, और इस टेक्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है, हमें सबसे पहले स्पेस फाइंड आउट करना है, इस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, इस वाले टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। अभी तक हम यही दो पैरामीटर्स को यूज कर रहे थे। अब हम तीसरे पैरामीटर को भी यूज करेंगे। ये तीसरा पैरामीटर क्या है? ये तीसरा पैरामीटर है स्टार्ट नम। स्टार्ट नम क्या है कि कहाँ के बाद आपको वो देखना है, राइट। तो अब हमें ये सेकंड स्पेस देखना है। वो सेकंड स्पेस हमें कैसे देखना है? फर्स्ट स्पेस के बाद से देखना स्टार्ट करना है इस स्पेस को। तो फर्स्ट स्पेस हमारा कहाँ पे है? यहाँ ये है, और इसके बाद से हम देखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये हमें देगा सेकंड स्पेस की वैल्यू, राइट। तो सेकंड स्पेस की वैल्यू हमें इस तरह से यहाँ से मिल जाएगी। तो हमें पता लग गया कि कहाँ कहाँ पे सेकंड स्पेस है, राइट। अब हम सिंपली
सेकेंड स्पेस से अगर हम फर्स्ट स्पेस माइनस कर देते हैं तो हमें जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे फिर से मिड लगाया और इस टेक्स्ट में स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, यहाँ से के एक आगे से स्टार्ट करना है और कितने करेक्टर चाहिए, ये करेक्टर -1, राइट। आ गया, ठीक आ गया। Yes, sir. ओके, अब इसी को हम जो अभी हमने यहाँ पे 3 अलग अलग टुकड़ों में फॉर्मूला लगाया है, फिर हमने स्पेस फाइंड आउट किया, फिर सेकंड स्पेस फाइंड आउट किया, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस काउंट फाइंड आउट किया, इन सबको हम एक साथ एक ही फॉर्मूले में लगाते हैं। तो क्या होगा, मिड और इस टेक्स्ट में स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमें फाइंड स्पेस इन दिस टेक्स्ट +1 से स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना है सेकंड स्पेस, राइट। सेकंड स्पेस फाइंड आउट करने के लिए फाइंड फर्स्ट फाइंड स्पेस इन दिस टेक्स्ट आफ्टर फर्स्ट स्पेस, तो फर्स्ट स्पेस कहाँ पे है, दिस टेक्स्ट, ठीक है, और माइनस फर्स्ट स्पेस अगेन, फाइंड दिस ये फाइन यहाँ पे बंद हो गया, प्लस हो गया, ये फाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फाइन वहां पे बंद हो गया। वैल्यू एरर, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे हम, तो जब उसकी वैल्यू नहीं आ रही थी, मिडिल नहीं थी। वैल्यू एरर आई थी वहां पे। वे दिखाई दे रही है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। ओके, तो एरर कहाँ पे आई थी एक्चुअली, यहाँ पे मैंने +1 नहीं लगाया था, इसकी वजह से यहाँ पे ये वैल्यू एरर आ रही थी, तो उसको मैंने +1 यहाँ पे हम ऐड कर देते तो हमारी वैल्यू सही आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इस पूरे फॉर्मूले में ये जो एक आपकी फर्स्ट अकरेंस है, जो फर्स्ट बेस है, इसको हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे हम यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूले में हम हर बार फर्स्ट स्पेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट नंबर +1, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें सेकंड स्पेस फाइंड आउट करना है, तो सेकंड स्पेस हमेशा फर्स्ट स्पेस के बाद ही फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्पेस +1 की वैल्यू दी,
तब हमने सेकंड स्पेस ढूंढा। और यहाँ पे तीसरी बार यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इस वाले फॉर्मूले से हमें ये जो पूरा फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले से हमें मिला कि हमारा जो सेकंड स्पेस कहाँ पे है, राइट। और इस वाले से हम फिर से फाइंड आउट करें कि फर्स्ट स्पेस कहाँ पे है। तो सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस को हम माइनस कर रहे हैं, तब हमें मिल रहा है कि हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं। करेक्ट? क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक लगा के मल्टीपल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अभी इसमें लास्ट नेम वाला भी कैलकुलेशन आएगा। तो लास्ट नेम वाला कैलकुलेशन करने के लिए अब यहाँ पे आपको जो लास्ट नेम कैलकुलेट करना है वो सेकंड स्पेस के बाद से करना है कैलकुलेशन, राइट। तो उसमें आपको फिर से सेकंड स्पेस फाइंड आउट करना पड़ेगा राइट में, और सेकंड स्पेस की वैल्यू को आपको टोटल लेंथ से माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सेकंड स्पेस है। तो मैं पूरा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पे करना है क्या है, सिर्फ राइट ऑफ दिस कॉमा लेंथ ऑफ ओवरऑल ऑफ दिस माइनस दिस, राइट। तो हमें लास्ट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। पूरा फॉर्मूला आपको अपने आप से कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी इसमें एक लेवल और अप आता है। आप में क्या है कि अभी यहाँ पे 2 वर्ड वाले और 3 वर्ड वाले नाम अलग अलग है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाओगे तो वो तो ऐसा नहीं करेगा। वहां वो तो सारी लिस्ट एक साथ दे देगा। तो क्या फॉर्मूले अलग अलग करके लगाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको फॉर्मूला एक ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेवल आता है, हम उसको कल कल डिस्कस करेंगे। आज ये जो आपके लिए प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट। सो डू दिस प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, जिससे आपके जो लॉजिकल बिल्डिंग हो वो सही हो, और आपका जो जो प्रैक्टिस है वो बेटर हो पाए। आई शेयर दिस स्क्रीन राइट आफ्टर, I'll share this sheet right after this call, so that you can have a look on formula and you can practice it on. Correct? Is that fine to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So please keep on your practice. कल 5th क्लास होगी, तो उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। तो आप असाइनमेंट प्रैक्टिस करके जितना भी अभी तक किया है वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।